Very good morning, friends. There is a lot of concern being expressed in various groups regarding the standing committee report. So I thought, let me make a short video on this. I'm sharing my screen here. So this is the standing committee on finance. I hope my screen is visible. This is a brief index. This is the composition of the standing committee, which consists of members from Lok Sabha and Rajya Sabha. And this is the details of the secretariat. Okay. This is the introduction part. So introduction part says that he has been appointed, Jayant Sinha has been appointed as the chairperson for the standing committee. It talks of various dates. It says that this amendment bill proposing to amend the three acts was introduced in the Lok Sabha on 17th December. Then it was referred to the committee on 22nd December 2021. Committee heard the views of representatives of three institutes on 3rd of February and evidence of representatives of MC on 9th of February. And finally, after considering all the points, it adopted the report on 21st March, which is the point of discussion. There is a special mention of Shri R. Narayana Swamy, who is a retired professor of finance and accounts from IIM Bangalore. Maybe that concept came from there. And then PRS Legislative Research. And third is the Confederation of Indian Industry. So their points were also taken into consideration before finalizing this report. The background of this standing committee report, it says that a need for change was felt consequent upon important changes in economic and corporate environment of the country. And a high-level committee by MCA was formed in 2017 to examine the existing provisions of three institutes. Regarding the need for this change, it was mentioned that there were rising disciplinary cases, large pendency was there. In some cases, involvement of auditors were there in some alleged financial scams. And accordingly, a need was felt to amend the three bills. Regarding ICI, it says that ICI is a statutory body and Chartered Accountant 49 Act, that is the governing act. And this act was previously amended in 1959 and 2006 and last amendment by the CA Amendment Act 2011. Then it talks of the administrative oversight and all those things. Headquarter Delhi, 5 regional councils, over 3.27 lakhs members, which we have heard so often in meetings of our ICI. Regarding, then it gives a brief about IC, Institute of Cost Accountants of India. In 59, this came into existence and amendment was done in 2006 and 2011. Headquarters in Kolkata, 4 regional council, institute has more than 85,000 members. Then Institute of Company Secretaries came into vogue on 1980 and amendments, previous amendments were done in 2006 and 2011. And with headquarters at Calcutta and 4 regional councils, it has more than 62,000 members. So Institute of Company Secretaries has almost 62,000 members, Institute of Cost Accountants 85,000 and Institute of Chartered Accountants 3.27 lakh members. Regarding salient features of the bill, I have already done one video on CA Amendment Bill. I hope it must be in public domain and I'll again share a copy of the same. But the main points of the amendment bill in a written note are as under. First is introduction of provision for making distinction between actionable and non-actionable complaints. So this is this amendment bill, the note written to the amendment bill, it says that there should be a provision for making a distinction between actionable and non-actionable complaints and information to be determined by the disciplinary directorate within a
time-bound manner of 30 days of receipt of a complaint. So within 30 days, it exhorts the directorate discipline to make a distinction whether the complaint is actionable or non-actionable. In a nutshell, it can be correlated with making a preliminary review within 30 days. Then it says before taking a decision on whether a complaint or information is actionable or non-actionable, the complainant or informant is to be given 15 days time to file additional documents. So within 30 days of receipt of complaint, you have to decide whether it is actionable and non-actionable. And before taking this decision, you have to give the complainant or informant 15 days time to file the additional documents, if any. So it leaves practically 15 days with the disciplinary directorate. Third is provision for appointment of at least 2 joint directors discipline in the disciplinary directorate of the institute, not below the rank of deputy secretary of the institute, to deal with the disciplinary cases. Then it says that you appoint at least 2 joint directors discipline in the disciplinary directorate, which will be overlooking this function. And they should not be below the rank of deputy secretary of the institute to deal with the disciplinary cases. It says at present there is no provision for appointment of joint directors. So the appointment of joint directors would enhance the capacity of the disciplinary directorate to deal with the complaints and information, and thus reduce the time taken for disposal of disciplinary cases. So it asks for appointment of additional workforce in directorate of discipline. So it says you appoint at least 2 joint directors discipline, and they should not be below the rank of deputy secretary of the institute. Then this preliminary examination report to replace prima facie opinion. So earlier there was a concept of prima facie opinion. Now it says they talk of preliminary examination report by director discipline holding the respondent guilty or not guilty in his or her opinion. So it says you issue a preliminary examination report instead of prima facie opinion, whether you want to hold the respondent guilty or not guilty. Then director or joint director discipline to give opportunity to the respondent to submit a written statement within 21 days. So opportunity of being heard should be given to the respondent to respond within 21 days, which may be further extended by another 21 days on a specific request with reasons for seeking further extension. So why he could not respond within the allotted time of 21 days and why he wants another 21 days. So on submission of specific reasons, additional time of 21 plus 21 could be granted. Then rejoinder to be submitted by the complainant or the information upon receipt of original submissions of the respondent within 21 days. Then there should be a rejoinder from the complainant side within 21 days. Then submission of preliminary examination report, director or joint director discipline within 30 days upon receipt of written submissions, and rejoinder, if any, if prima facie case is made out. So if it says that prima facie a case exists, then this preliminary examination report, it could be submitted by director or joint director discipline within 30 days when all the submissions, rejoinders, etc. have been received. Then it further says that the complaint filed by an authorized officer of government or statutory authority accompanied by an investigation report or extract thereof along with supporting evidence is to be treated as preliminary examination report. So here it makes a distinction between the complaints filed by an authorized officer of the government or statutory authority and other persons. In case complaint is filed by other persons, preliminary examination report is to be issued. But in case the complaint is filed by authorized officer of the government or statutory authority, then it should be treated as preliminary examination report. So at present, the said complaints go through PFO, prima facie opinion route. So it says even if the authorized officer of the government files the complaint, it also has to go through the prima facie opinion route. But now it says direct entry of complaints filed by an officer of the government or statutory authority accompanied by an investigation report or extract thereof along with supporting documents. So this would avoid delays in concluding inquiries in such cases at the preliminary stage. So
basically says don't waste time in preliminary examination report and take it, deem it, the complaint filed by an authorized officer of the government or statutory authority, you treat it as preliminary examination report in itself and don't waste much time. Then next it goes on to say that non-actionable complaints and information to be submitted to Board of Discipline within 60 days of receipt. So this non-action, first you make a distinction between actionable and non-actionable. And this non-actionable complaints and information, they are to be submitted to Board of Discipline within 60 days of receipt. And Board of Discipline may ask Director of Discipline to re-examine the information of complaint. So if the Board of Discipline feels that Director Discipline has not applied his mind properly, he may ask to re-examine the information or complaint. Otherwise, non-actionable report will be filed. Next is withdrawal of complaint not permitted at any stage. Sometimes just as arm twisting tactics, complaints are being filed. So it says that there will be no withdrawal of complaint at any stage. Another point is regarding appointment, reappointment and termination of appointment of Director Discipline and Joint Director Discipline by the Council of the Institute with the previous approval of the central government. So it wants to introduce a check and oversight mechanism to enable the officers engaged in discipline of the investigation of the complaints or information to discharge their functions in an independent and unbiased manner without any favor. So it says that in case you want to appoint a Director Discipline or Joint Director Discipline, then their appointment, their reappointment and termination should be with the previous approval of the central government, because such appointment, reappointment or termination with the previous approval of the central government will check as a oversight mechanism so that the officers are independent in their functioning. Next is inclusion of firms under the purview of disciplinary mechanism and a new chapter proposed for registration of firms with the institutes. At present, there is the concept of disciplinary action against members only, but it says that you take action against firms as well besides members. So the firms should also be included under the purview of disciplinary mechanism, and you make the necessary amendments accordingly. And the council shall continue to constitute boards of discipline and disciplinary committees as at present. So it says that you continue whatever you are doing, board of discipline, disciplinary committees. However, the majority will be of non-members of the institutes, commonly called as lay members in these bodies. So it says the majority will be of the non-members of the institute. So majority should not be, so like ICAI is forming a disciplinary committee, then the majority should be of the non-members of the institute, and they are commonly called as lay members. Maybe that they want to avoid conflict of interest or maybe pressure tactics or something like that. Next is the present practice of direct nomination by the central government in the board of discipline and disciplinary committees is proposed to be discontinued. So it says there is a practice of direct nomination by the central government in the board of discipline and disciplinary committees. So instead, the presiding officers will be selected by the central government from out of a panel of suitable persons with experience in law, having knowledge of disciplinary matters and the profession, and lay members will be selected from out of a panel of persons of eminence having experience in the field of law, economics, business, finance or accountancy. So it says presently we are nominating the members in the board of discipline and disciplinary committees. This practice should be discontinued. The presiding officers will be selected by the central government out of two types of panels. First is the panel of persons with experience in law, having knowledge of disciplinary matters and the profession, and then lay members will be selected from out of a panel of persons of eminence of experience in the field of law, economics, business, finance or accountancy. So it says you make two types of panels. First will be those having experience in law and having knowledge of disciplinary matters, and then another category of lay members who have experience in law, economics, business, finance or accountancy. And the presiding officers
and the lay members shall not be the members of the institute. So they should not be the presiding officers and lay members. They should not be, suppose it's a ICI, so they should not be chartered accountants. And similarly for company secretaries and cost accountants. And the panel of non-members of the institute will be prepared and provided by the councils of the institute. So the councils, they should provide the panel of non-members of the institute, and out of that panel selection will be done. Next is, instead of direct nomination, which is the practice now. Next, on the other hand, appointment of the members of the institute in board of discipline and disciplinary committees will done by the council itself out of a panel of such members to be prepared by the council, and regulations for such matters will be made. So appointment of the members of the institute in board of directors and disciplinary committee, they will be done by the council itself. But for that also you maintain a panel of members. You prepare a panel and then you select out of that panel. Then provision of more board of directors for quicker disposal of cases on the lines of CDs. Provision for presiding officers and lay members in the board of discipline of the ICSI and ICOI in place of existing practice of nomination of only members of the institute by the council of these two institutes on the lines of. So similarly, instead of direct nomination, there should be provision for presiding officers and lay members in the board of discipline for the other two sister institutes as well. Next is insertion of the word development along with regulation. So it says that basically the act earlier is regulation, and now you say development also should be the word inserted in the preamble of the Chartered Accountants Act. So earlier you were regulating only, now you think of development also, and similarly for other institutes. And then next is the proposal to enhance the term of the council of ICI from 3 years to 4 years. Now elections are held after every 3 years and council is reconstituted. Now it should be 4 years instead of 3 years, and maximum 2 consecutive terms of 4 years for a person in the council. Now a council member can serve for 3 consecutive terms. Now they say you serve for 2 terms of 4 years each, so 8 years in total. And enhancement in penalties and fines in case of misconduct. And next is autonomy to the councils of the institute in the matter of fixation of fees. So fees, you have to decide fees to be charged to members, so there is sufficient autonomy. Next is provision to enable the institutes to remove the name of the members or to remove the name of the firms or members in case of non-payment of penalties. So institute itself is enabled now to remove the name of the firm or members in case of non-payment of penalties. Then disposal of disciplinary cases within 180 days by disciplinary committee and 90 days by board of discipline. So there is a time-bound mechanism that the cases being handled by disciplinary committee, they should be disposed of within 180 days, and the cases handled by board of discipline, they should be disposed of within 90 days. An entire disciplinary proceeding since filing of complaint to be completed within 365 days. So they say you decide within a year whatever action you want to take, and you count the period from the date of filing of the complaint to the final disposal. And all this should be done within 1 year, within 365 days. Then audit of annual accounts of the councils of the institute by a firm of chartered accountants to be appointed annually by the councils from the panel of auditors. So they say that you select your auditor from the panel of auditors, which is maintained by CAG. And this nomenclature of Cost and Works Accountants Act proposed to be changed to Cost Accountants Act. So these are some of the main points which are covered in the amendment bill. These are the salient features as per the written note. Now, issues discussed. So in view of the detailed examination of the 3 bills and the suggestions received from the stakeholders, the committee, the standing committee, which is being headed by Jayant Sinha, it endorses the provisions of the bill in general and have commented upon some of the important clauses of the bill which are as under. So now is the view of the committee based on the decisions received from stakeholders. In general, they have endorsed the provisions of the bill
and they've commented upon some of the important clauses of the bill, which are as under. Like say constitution of a coordination committee. The provision of a for a coordination committee currently does not exist in the principal act. So it says you provide for a coordination committee. So clause 9 of the bill reads as under, after section 9 of the principal act, the following section shall be inserted. Namely, there shall be a coordination committee consisting of the president, vice president, and secretary of the council of each of the institutes for the development and harmonization. The meeting of the coordination committee, it shall be chaired by the secretary, Ministry of Corporate Affairs, and the meeting of the coordinated committee shall be held once in every quarter of a year. So in a year, 4 meetings should be held, one in each quarter, and the meeting of the coordination committee, which consists of president, vice president, and secretary of the council of all the 3 institutes. And this coordination committee, it will be chaired by secretary, Ministry of Corporate Affairs. Quarterly meeting, 4 meetings in a year. And the committee shall be responsible for the effective coordination of the functions assigned to each institute and shall ensure quality improvement for academics, infrastructure, focus on coordination, align the cross-disciplinary regulatory mechanism, and make recommendations in matters related to regulatory policies and perform such other functions. Now, they are talking on this standing committee, it talks of views and suggestions from the 3 institutes regarding this proposed constitution. So they have tried to cover the important provisions of the amendment bill and what are the views and suggestions from the various stakeholders. So the committee now discusses the views and suggestions from the 3 institutes on the proposed constitution. ICAI. So ICAI submitted that constitution of coordination committee would amount to not only intruding the autonomy of the institute. So it says that you do not introduce the concept of coordination committee. They say it will move inroads into our autonomy. It will intrude the autonomy and it may also hamper the decision-making authority of the council of the respective institutes, which is evident from the functions proposed to be assigned to this committee, that you form a committee of president, vice president, and secretary of all the 3 institutes. That committee to be headed by the secretary, quarterly meetings, and the chairperson of the committee will be secretary, Ministry of Corporate Affairs. So the ICAI on this amendment, it says that it will intrude the autonomy and it may hamper the decision-making process. A coordination committee of the all the 3 institutes is already in place as a non-standing committee. So it says there is a non-standing committee of the institute and this may be made a standing committee. So it says make that non-standing committee is a standing committee and its some terms of reference should be to discuss and resolve common issues like multidisciplinary partnerships, etc. Now, what is the view of Institute of Cost Accountants of India? The institute support proposal for establishment of a coordination committee. So it says it is a welcome proposal for the secretary to chair meetings of the coordination committee and Institute of Company Secretaries. Institute of Company Secretary says that the main purpose of the coordination committee is to bring coordination and harmony among the 3 institutes and it should make recommendations to the effect. So the scope of the coordination committee should be for such matters, areas that may require action by more than 1 institute. So IC, Institute of Cost Accountant, they said it's a welcome step. Institute of Chartered Accountant, they said it will intrude the autonomy and it will hamper the decision-making process. Institute of Company Secretary says that you decide the scope of the coordination committee and that should be that should cover matters which require action by more than 1 institute and it should not be made responsible for the functions assigned to each institute. So whatever each institute is already doing, that should not be within the scope of the coordination committee, but coordination committee could deliberate on issues which cover action by more than 1 institute. So this was the version of the Institute of Company Secretaries of India. Accordingly, the words be responsible in subsection 4 be deleted and the word work be inserted. The word ensure be replaced with the word make recommendations for. Furthermore, the words infrastructure and other related works of the institute may be removed, and the same should be under the purview of the respective institutes and not of the committee. So it says that
infrastructure and other related works of the committee, they should be outside the preview of the coordination committee. So this was the brief view of the three institutes on the point of introduction of a coordination committee, which should be chaired by Secretary, Ministry of Corporate Affairs. Now the suggestions of Ministry of Corporate Affairs. The Ministry of Corporate Affairs furnished the following comments. It may be noted that the two institutes, Institute of Cost Accountants of India and ICSI, they have not objected. And the purpose of committee is not to interfere, but effective coordination. So at present, often it is seen that institutes of one institute do not find support from other institutes, since there is no mechanism of regular meetings of the representatives, because there is a non-standing committee. Institute of Chartered Accountants of India recommended that let that non-standing committee be made into a standing committee, but we do not relish the idea of a coordination committee. The proposed mandate of the coordination committee inter alia is to ensure quality improvement. And section 29, then they make a reference to the IIM Act also. So section 29 of the IIM Act and section 40 of the IIT Act also envisage a coordination forum for all the IIM and IIITs. So the standing committee of a particular institute cannot function as a coordination platform for all the three institutes. So this is the view of the MCA. So as per the proposed bill, the coordination committee will comprise of president, vice president, and secretaries of the three institutes, quarterly meetings of which shall be held under the chair personship of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs, which is the administrative machinery. So regarding the regarding the constitution of coordination committee, the recommendations of the high-level committee report headed by Ms. Meenakshi Datta Ghosh reads as under. So then there is a recommendation of the high-level committee headed by Meenakshi Datta Ghosh ji. It says, presently the coordination committee among three institutes has been constituted in an informal manner with non-specific terms of reference. The coordination committee meets infrequently with no significant schedule for deliberation. Given the fact that these three institutes together constitute an integral part of the corporate governance, effective coordination is imperative, and the terms of reference should include all aspects of development as well as regulating the profession. Now, the views of the committee, the standing committee. The committee note that the bill, they listen to the views of the three institutes, listen to the views of Ministry of Corporate Affairs, and got inputs from a high-level committee also. And the standing committee, then it notes that the bill seeks to constitute a coordination committee for the development and harmony of the three professions of the chartered accountants, cost accountants, and company secretaries. So while the intent of the proposed amendment is effective coordination, the committee finds that the apprehensions expressed by ICI regarding dilution of autonomy and the decision-making authority of the council may be suitably addressed. So committee took into view the apprehensions expressed by ICAI, and they said that it should be suitably addressed. So it's a positive step. The committee, however, note that the other two institutes in question, they have not objected, and the committee are of the view that the terms of the constitution of the proposed committee may be reviewed in as much as it may be chaired by an eminent person from industry, finance, or business who is not a member of any of the three institutes in question instead of secretary. So now the original amendment bill, it talks of the heading the coordination committee by secretary, but now the committee recommends that it should be chaired by an eminent person from industry, finance, or business who is not a member of any of the three institutes. कोई भी नहीं होना चाहिए, CA, CS, ICW के अलावा कोई भी eminent person को ले लो, secretary of को मत लो, ठीक है? The secretary can be a member of the committee and can represent the government side, ठीक है? तो थोड़ा बहुत amendment तो आया इसमें, ठीक है? जो पहला प्रोविजन था, जो ओरिजिनल अमेंडमेंट बिल में था, वो ये था कि सेक्रेटरी चेयर करेगा. यहाँ पर बोलता है कि भाई तीनों इंस्टीट्यूट का कोई भी मत लो आप मेंबर, ठीक है ना, उनके अलावा कोई भी पर्सन ऑफ एमिनेंस ले लो और जो सेक्रेटरी है उसको आप एक मेंबर बना दो, मेंबर ऑफ द कमेटी, ठीक है. द चेयरमैन मे दस बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट.
उसके लिए कहते हैं एक पैनल बना दो, आउट ऑफ ए पैनल ऑफ सच एमिनेंट पर्संस प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव काउंसिल। जो तीनों इंस्टीट्यूट की काउंसिल है वो एक पैनल बनाए, और उस पैनल में किसका नाम देंगे, अदर देन सीए, सीएस और आईसीएस। The other members of the committee may be the elected office bearers of the committee। वो कहते हैं कि भाई बाकी जो जो इलेक्टेड ऑफिस बियरर्स हैं उनको भी रख लो आप, है ना, वो अदर मेंबर्स में रख लो। तो चेयरमैन कहां से बनेगा, चेयरमैन एक पैनल से बनेगा, और उस पैनल को कौन बनाएगा, ये तीनों काउंसिल्स बनाए, ठीक है। The coordination committee may act as the apex body for harmonious regulation, effective professional development, and objective disciplinary oversight of the three institutes, particularly keeping in view the fast emerging prospect of multidisciplinary firms, entities, and the fact that the three professional institutes in question together constitute the corporate governance। ठीक है, तो रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी तो इन्होंने ये कहा, ठीक है, कि भाई आपको सेक्रेटरी से दिक्कत है, सेक्रेटरी को मत रखो, सेक्रेटरी को मेंबर बना दो, कोई भी एमिनेंट पर्सन ले लो और एक पैनल से बना लो, और पैनल कौन बनाएगा, तीनों इंस्टीट्यूट बना दे, और जो बाकी इलेक्टेड मेंबर है भाई उनका भी चलता रहे, उनको जो है अदर मेंबर्स ले लो। नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिनरी कमेटी। अब यहां पर इन्होंने पहले डिस्कस किया कि भाई क्या प्रोविजन था, एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है और प्रपोज्ड अमेंडमेंट क्या थी, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की। इन्होंने क्या किया है कि पहले प्रोविजंस को डिस्कस किया, फिर स्टेक होल्डर्स के ओपिनियन को डिस्कस किया, और बाद में अपना फाइनल व्यू इस पर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिनरी कमेटी, इसमें क्या बोला, इसमें एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में क्या कहा कि भाई यहां पर होगा एक पर्सन विद एक्सपीरियंस इन लॉ एंड हैविंग, ठीक है, और दो मेंबर होंगे, वन ऑफ whom shall be a member of the council, ठीक है, और अदर मेंबर जो होगा वो भी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंगस्ट द पर्संस ऑफ एमिनेंस हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस और अकाउंटेंसी, ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में है वो ये प्रोविजन है कि काउंसिल जो है इट विल कॉन्स्टिट्यूट ए बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें कौन होगा, ए पर्सन विद एक्सपीरियंस इन लॉ एंड हैविंग नॉलेज ऑफ डिसिप्लिनरी मैटर्स एंड द प्रोफेशन टू बी इट्स प्रिजाइडिंग अफसर, और दो मेंबर होंगे, दो मेंबरों में से एक तो मेंबर ऑफ काउंसिल होगा, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो नॉमिनेट होगा। अभी ये पोजीशन है। अभी प्रपोज्ड अमेंडमेंट में क्या कहा, प्रपोज में कहा कि भाई एक से आप ज्यादा मेंबर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बना दो। अभी आपने एक बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बना रखा है, यू कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर बोर्ड्स ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, और वहां पर क्या रहेगा, ए पर्सन नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहां पर कहा कि मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में, ठीक है, और टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज इट्स प्रिजाइडिंग अफसर, कि प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। पहला क्या प्रोविजन था, पहले प्रोविजन था कि काउंसिल नॉमिनेट करेगी। अब प्रपोज्ड अमेंडमेंट में क्या आया है, प्रपोज्ड अमेंडमेंट में आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, और वो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहां से बनाएगी, आउट ऑफ पैनल, पैनल काउंसिल बना दे, ठीक है। अगला, one member who is a person of eminence having experience in the field of law, economics, business, finance or accountancy and not being a member of the institute to be nominated by the central government। वो भी इसके लिए भी कहा है भाई काउंसिल एक पैनल बना दे, और ये आप एक जो है एक पर्सन को एक मेंबर रखो इसमें, जो है who should be a person of eminence, ठीक है, but he should not be a member of the institute। और एक मेंबर रखो टू बी नॉमिनेटेड बाय द काउंसिल फ्रॉम आउट ऑफ पैनल ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट टू बी प्रिपेयर्ड बाय द काउंसिल, और एक मेंबर रखो आप टू बी नॉमिनेटेड बाय द काउंसिल आउट ऑफ ए पैनल ऑफ मेंबर्स। एक पैनल बनाओ, उस पैनल में से एक मेंबर नॉमिनेट करो, ठीक है, और जो दो हैं इसमें वो नॉट बीइंग मेंबर, मतलब तीन हो गए एक किस्म से बेसिकली। तो पहला जो है ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ही शुड बी एक्सपीरियंस, ठीक है, वो हेड हो जाएगा बेसिकली, एक मेंबर बन जाएगा इसमें, वो भी मेंबर नहीं होना चाहिए इंस्टीट्यूट का, नॉमिनेट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, और पैनल इसके लिए काउंसिल बना दे, ठीक है। मतलब सारे तीनों सिचुएशंस में पैनल गवर्नमेंट कह रही कि काउंसिल आप ही बनाओ पैनल, पहला तो ऐसा लाओ, पहले दो लोग तो ऐसे लाओ जो कि मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ना हो, ठीक है, आप रिकमेंड करो, उसमें से हम नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। दूसरा भी जो है वो भी मेंबर नहीं होना चाहिए, और पैनल आप बनाओ, पैनल काउंसिल बनाए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करेगी। और थर्ड पर्सन जो है एक
पर्सन जो कौन नॉमिनेट करेगी, काउंसिल आउट ऑफ ए पैनल ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो एक मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हो जाए, दो ऐसे हो जाए जो कि नॉन मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हो, लेकिन तीनों के लिए पैनल कौन बनाएगा, काउंसिल ही बनाएंगे। अगला डिसिप्लिनरी कमेटी। द डिसिप्लिनरी कमेटी में अभी पहला प्रोविजन क्या है वो पढ़ लेते हैं। पहले प्रोविजन में ये लिखा है, द काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट ए डिसिप्लिनरी कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एज द प्रिजाइडिंग अफसर। अभी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रेसिडेंट होता है और एक होता है वाइस प्रेसिडेंट एज द प्रिजाइडिंग अफसर, और दो मेंबर होते हैं वो भी मेंबर्स ऑफ काउंसिल होते हैं, और दो मेंबर जो है वो नॉमिनेट होते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अमंग द पर्संस ऑफ एमिनेंस। तो इस तरह से ये डिसिप्लिनरी कमेटी बनती है, ठीक है। प्रिजाइडिंग अफसर इसमें प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट होता है, और दो मेंबर होते हैं जो काउंसिल इलेक्ट करती है, और दो मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ये हमारा प्रेजेंट पोजीशन है। अब यहां पर क्या कहा अमेंडमेंट में, अमेंडमेंट ने ये कहा कि भाई अभी आपके पास एक ही डिसिप्लिनरी कमेटी है, तो अब आप एक से ज्यादा भी बना सकते हो। जैसे पहले प्रोविजन में ये कहा कि भाई आपके पास एक बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, तो यू कैन मेक वन और मोर। इसी तरह से डिसिप्लिनरी कमेटी में भी कहा कि यू कैन कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर, और उसमें मेंबर कौन होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा ये मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट नहीं होने चाहिए, ठीक है। नॉमिनेट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो भी आपका प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। दो मेंबर जो है वो भी आप इलेक्टेड मेंबर होते हैं काउंसिल के, और दो मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ये तो प्रेजेंट प्रोविजन है। अब इन्होंने कहा जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो आप पैनल बनाओ, काउंसिल एक पैनल बनाए, और वो कौन होना चाहिए, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अपने मेंबर के खिलाफ खुद ही एक्शन ले रहे हो, तो मेंबर नहीं होना चाहिए, पैनल काउंसिल बना दे, ठीक है। ये बात रही प्रेसिडिंग अफसर की। उसके बाद में क्या कहा कि टू पर्संस ये भी कहा कि मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट नहीं होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, काउंसिल बनाएगी पैनल, ठीक है। फिर टू पर्संस टू बी नॉमिनेटेड बाय द काउंसिल फ्रॉम आउट ऑफ ए पैनल ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो एक पैनल आप ऐसा बनाओ जिसमें से आप दो मेंबर्स अपने भी नॉमिनेट कर सकते हो, मतलब जो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये कहा कि भाई प्रोवाइडेड दैट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज ए एंड द मेंबर्स नॉमिनेटेड मे बी द सेम फॉर डिफरेंट डिसिप्लिनरी कमिटीज। मतलब अगर आप एक से ज्यादा डिसिप्लिनरी कमेटी बनाते हैं तो प्रिजाइडिंग अफसर सेम भी रह सकता है, ठीक है, और जो मेंबर्स हैं वो भी सेम रह सकते हैं, ठीक है। अगला, अब इसके ऊपर आईसीआई ने क्या सजेशन दिया अपना, क्योंकि जब ये अमेंडमेंट बिल आया सजेशंस मांगे गए स्टेक होल्डर से, तो तीनों इंस्टीट्यूट ने अपने अपने सजेशन दिए, मिनिस्ट्री ने भी अपने सजेशन दिए, और भी लोगों से सजेशन दिया। उसके बाद में फिर स्टैंडिंग कमेटी ने अपना व्यू दिया इस पर। आईसीआई ने कहा कि भाई इनको स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस है, स्ट्रॉन्ग व्यूज या ऑब्जेक्शंस है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। अब वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि आप डिसिप्लिनरी केसेस की जजमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब 3 मेंबर की आपका बोर्ड है, 3 में से 2 आप चाह रहे हो कि नॉन सीए हो, तो इसका मतलब नॉन सीए जो सीए का काम जज करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा दी अनप्रेसिडेंटेड प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ 2 नॉन सीएस एज मेंबर्स आउट ऑफ 3 मेंबर्स बोर्ड मे हैव ए लार्जर इंपैक्ट एज द वर्क ऑफ सीएस वुड बी मेजरली जज्ड बाय नॉन सीएस। भाई 3 लोगों का पैनल है, 3 में से 2 नॉन सीए हैं, और काम किसका जज कर रहे हैं, डिसिप्लिनरी केस किसके अगेंस्ट में हो रहा है, सीए के अगेंस्ट में हो रहा है। Earlier, there used to be only one government nominee in board of discipline, and presiding officer used to be nominee of council only. ठीक है, जो थर्ड मेंबर है वो सीए मेंबर होगा, जो कि नॉमिनेटेड होगा काउंसिल से फ्रॉम ए पैनल टू बी प्रिपेयर्ड बाय द काउंसिल, ठीक है। अब ये कहते हैं जो नॉन सीए मेंबर है, इंस्टीट्यूट हमारे इंस्टीट्यूट का मानना ये है कि जो नॉन मेंबर्स हैं उनको अकाउंटिंग वगैरह की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की क्या नॉलेज है, ठीक है, उनको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती, ठीक है ना। अब ट्रू एंड फेयर, मटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, बेस चेकिंग, टेस्ट बेस चेकिंग, इस सब की जो है उनको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती, और ऑडिटिंग जो है हाईली टेक्निकल बन चुका है, ठीक है ना। और इसके बाद में ये वो कहता है कि जो डिसीजंस हैं बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में वो यूनानिमसली लिए जाते हैं, ठीक है, दैट इज विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट नॉमिनी। तो देयर इज बेयरली एनी इंस्टेंस व्हेन एनी मेंबर हैज डिसेंटेड फ्रॉम द डिसीजन टेकन बाय बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एज ए होल। तो वो कहते हैं कि नॉर्मली हमारे यहाँ जो डिसिप्लिन जो लिए जाते हैं डिसीजंस वो यूनानिमसली लिए जाते हैं।
अब आप कह रहे हो जी 3 मेंबर में से 2 तो नॉन सीए ले आओ। अब इतना हाईली टेक्निकल फील्ड है सीए, ऑडिट, ट्रू एंड फेयर, ये सब कहाँ समझेगा जो नॉन सीए है। ये हमारे इंस्टीट्यूट का कहना था। ठीक है, उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी, 2 थे ना, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और ये डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी में भी आईसीआई का मानना ये था कि जो कंडक्ट है इट शुड बी जज्ड बाय प्रोफेशनल्स ओनली। ठीक है, फिर उन्होंने इसमें रेफरेंस दिया कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है आईफैक, दे हैव इशूड स्टेटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑब्लिगेशंस 6 SMO 6 and ICI being member of IFAC needs to comply with the same. So IFAC has in its communication to ICI confirmed that ICI is compliant with SMO 6. So further best efforts are made to ensure that composition of DC is made in such a way that no member minimum possible members, here the cases of the regions to which he belongs. वो कहते हैं भाई ऐसा है, हम कोशिश करते हैं कि जिस रीजन का केस आ रहा हो तो उस रीजन के मेंबर्स ना सुने उस केस को। ठीक है, नॉर्दर्न रीजन के मेंबर के अगेंस्ट में केस आ रहा है तो सदर्न वाले सुन ले, सदर्न के अगेंस्ट में आ रहा है तो ईस्टर्न वाले सुन ले, इस तरह से ये हम कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड द एपेलेट अथॉरिटी already constituted under section 21A or 22A of the act has majority of non-CA members and all are appointed by सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कहते हैं जो एपिलेट अथॉरिटी है, एपिलेट अथॉरिटी में पहले से ही सारे नॉन सीए मेंबर्स हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है एंड द चेयरपर्सन इज आल्सो ए नॉन सीए मेंबर। तो हमारे आईसीआई ने डिसिप्लिनरी कमेटी के बारे में कहा कि भाई एक तो आईफैक वाला जो है, आईफैक से भी हम कंप्लायंट है एसएमओ 6 से। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है कि एक रीजन का केस दूसरे रीजन वाले सुनते हैं और जो एपिलेट अथॉरिटी है उसमें सारे ऑलरेडी नॉन सीए ही मेंबर है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ने क्या कहा, इंस्टीट्यूट कॉस्ट अकाउंटेंट ने कहा जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाओ। इंस्टीट्यूट हैज नो रिजर्वेशन ऑन द कंपोजिशन एंड मेजॉरिटी। ठीक है, तो वी आर ए प्रोफेशनल बॉडी, वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, और वो कहता है कि भाई अभी भी हमारे पास गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर है जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर प्रिजाइडिंग अफसर या दूसरे मेंबर जो है वो नॉन कॉस्ट अकाउंटेंट हो जाए, वी वेलकम दिस चेंज। कंपनी सेक्रेटरी ने क्या कहा, कंपनी सेक्रेटरी ने कहा कि जो पैरामीटर्स है फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रिजाइडिंग अफसर एंड मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिनरी कमिटीज एंड सच रिस्ट्रिक्शन शुड बी स्पेसिफाइड थ्रू रूल्स रादर देन थ्रू रेगुलेशन। उन्होंने कहा भाई ये चीजें जो है आप रूल्स के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दो, रेगुलेशन में क्या लाने की जरूरत है। आई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने ये कहा रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिनरी कमिटीज। It is proposed to include one member from out of the council of the institute as you can understand the technicalities of the profession। तो उन्होंने कहा भाई एक मेंबर जो है वो काउंसिल का भी ले आओ आप। ठीक है, ताकि वो जो टेक्निकलिटीज को समझेगा। ठीक है, अच्छा एमसीए ने क्या कहा इस पर, एमसीए ने कहा द काउंसिल शैल कंटिन्यू टू कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। वो कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बनाओगे तो आप ही, एमसीए ने कहा, और नंबर ऑफ मेंबर्स में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, लेकिन यह है कि प्रिजाइडिंग अफसर जो है और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन इट विल बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैनल से नॉमिनेट करेगी, वो पैनल भी आप ही बना रहे हो। ठीक है, और ये भी आपको देखना है कि उसको नॉलेज हो डिसिप्लिनरी मैटर्स की और प्रोफेशन। ठीक है, one member in board of discipline shall be nominated by central government from out of a panel of persons having experience in the field of law, economics. ठीक है, remaining one member shall be nominated by the council from out of panel of members of the institute to be prepared by the council। ठीक है, इन्होंने कहा भाई इस पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा हमने ग्लोबली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी स्टडी किया कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, वहां क्या प्रैक्टिसेस हैं वहां देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा द कंडक्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर ऑडिटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज आर रेगुलेटेड बाय इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स व्हिच आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस आप देख लो, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, वहां पर क्या हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक है, और कंडक्ट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का दे आर रेगुलेटेड बाय इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स। ठीक है, और वहां पर जो मेजॉरिटी है वो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। ठीक है, द रिमेनिंग ऑडिटर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर नॉट अंडर द डोमेन ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स आर रेगुलेटेड आइदर बाय statutory self-regulatory organizations like India or Canada or by self-regulatory organizations which are non-government organizations like in UK, South Africa and Australia। वो कहते हैं कुछ तो सेल्फ रेगुलेटेड है जैसे इंडिया में है, ठीक है ना, इंडिया या कनाडा में,
है। और कुछ जो है कुछ कंट्रीज में वो क्या है कि वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स ही उनको रेगुलेट करते हैं, ठीक है, और मेजोरिटी उसमें नॉन मेंबर्स होते हैं। इन इंडिया मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑडिटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज कम्स विद इन द डोमेन ऑफ नफरा। वो कहते हैं कि इंडिया में अगर किसी ऑडिटर का जो मिसकंडक्ट है, ठीक है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है कोई, तो इट कम्स विद इन द प्रीव्यू ऑफ नफरा, एंड द ऑडिटर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय नफरा कम्स अंडर द डोमेन ऑफ आईसीआई। वो कहता है कि भाई जो नफरा में नहीं आते, जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं लाइक से लिस्टेड कंपनीज, तो वो तो नफरा में आ जाते हैं। जो नफरा में कवर नहीं है वो कहाँ आ जाते हैं, वो आईसीआई। तो ग्लोबली देयर इज अ क्लियर सेपरेशन ऑफ इलेक्टेड बॉडीज मेंबर्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन एंड disciplinary processes in the self-regulated organizations. It has been observed that members of the council or other committees of the council board are not part of the disciplinary panel. वो कहता है आप ही काउंसिल हो, आप ही बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के मेंबर हो, आप ही डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर हो, तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मिनिस्ट्री ने बोला। यूके में क्या कहा, यूके में कहा जो ले मेंबर्स हैं, जो नॉन सी मेंबर हैं, वो डिसिप्लिनरी पैनल को हेड करते हैं, ठीक है। इन यूके देयर आर मल्टीपल बॉडीज imparting education and regulating the accountancy profession unlike India। तो उन्होंने कहा यूके में जो है वहां जो डिसिप्लिनरी पैनल है उसका हेड कौन होता है, नॉन सी है, ठीक है। यूके में कहते हैं कि बहुत सारी बॉडीज हैं जो एजुकेशन इम्पार्ट करती हैं और अकाउंटेंसी प्रोफेशन को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी मोनोपोली है आईसीआई, ठीक है। फिर यूएसए में जो स्टेट बोर्ड ऑफ अकाउंटेंसी रेगुलेट्स द प्रोफेशन and license to practice is also given by them. So there are 56 boards of accountancy in USA and the members of the board are appointed by the government। तो उन्होंने कहा कि 56 बॉडीज हैं अकाउंटेंसी की यूएसए में, और जो मेंबर्स ऑफ बोर्ड है वो कौन अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट। और यूके में भी जो है डिसिप्लिनरी पैनल को कौन हेड करता है, नॉन सीएस। और बहुत सारी बॉडीज हैं, देयर आर मल्टीपल बॉडीज जो कि एजुकेशन इम्पार्ट करती हैं एंड विच रेगुलेट द अकाउंटेंसी प्रोफेशन। यहाँ पर क्या है इंडिया में कि आईसीआई की ही स्टैट्यूटरी मोनोपोली है। इन द साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ए सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स साउथ अफ्रीका, चेयरपर्सन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट कमेटी इज जनरली एन अटॉर्नी एडवोकेट, या फिर वो रिटायर्ड मजिस्ट्रेट होता है। सिमिलरली जो चेयरपर्सन है डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ SAICA, मतलब साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, also happens to be advocate attorney। या उन्होंने कहा मैंने ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी हैं, तो ज्यादातर क्या है कि नॉन मेंबर्स ही डिसिप्लिनरी पैनल के हेड होते हैं, कई केसेस में वो एडवोकेट या अटॉर्नी या मजिस्ट्रेट भी होते हैं। इन अकाउंटेंसी बॉडीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, नो मेंबर ऑफ द बोर्ड काउंसिल इज ए मेंबर ऑफ द डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल का मेंबर कोई भी वहां पर ऑस्ट्रेलिया कनाडा में वो जो है काउंसिल का मेंबर कोई भी ट्रिब्यूनल का मेंबर नहीं होता, ठीक है। और आईफैक जो है, आईफैक जो है एक एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द अकाउंटेंसी प्रोफेशन, हैविंग मोर देन 175 मेंबर्स एंड एसोसिएट्स इन मोर देन 130 कंट्रीज एंड जुरिसडिक्शन, ठीक है। इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ मेंबर ऑब्लिगेशंस SMO 6 इट हैज रिकमेंडेड इंडिपेंडेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिसिप्लिन फंक्शन। तो उन्होंने कहा कि SMO 6 आईसीआई कंप्लायंट है, बट ये है कि इसमें आईफैक ने भी कहा है कि they have also recommended independence in investigation and discipline functions। तो as per IFAC recommendations, independence and regulatory functions of SROs is measured in terms of participation of non-auditors in discipline and investigation functions। वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंस को कैसे मेजर करते हैं, जो सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो देखते हैं कि नॉन ऑडिटर्स का कितना पार्टिसिपेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में वो कहता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एविडेंस एमसीए के रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या कहा, एमसीए ने कहा कि भाई ऐसा है कि देयर इज नो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज बॉडीज। ये जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिनरी कमेटी है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। काउंसिल ही बनाएगी बॉडीज को, अपने आप यही पैनल देंगे, उसी पैनल में से हम सेलेक्ट करेंगे। They will also have their own nominee, उनके अपने नॉमिनी भी इसमें होंगे। So there is no change, rather than what we have done, we have withdrawn our government nominee। उनका लो जी गवर्नमेंट नॉमिनी हम विड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट नॉमिनेशन कोई होगा ही नहीं डायरेक्ट, एमसीए ने कहा। So it is rather giving more autonomy to them to suggest a name। भाई जिसका मर्जी आप नाम सजेस्ट कर दो, आपको और ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी, ठीक है।
which they feel is good to regulate them. लेकिन आपका वो जो हम खुद ही अपने आप को रेगुलेट करेंगे, they will be suggesting names, we will not be suggesting names. MCA ने सब बोला. In fact, the earlier provision was that the government will appoint 2 nominees in the disciplinary committee. That we are withdrawing. उन्होंने कहा जी हमारे 2 गवर्नमेंट नॉमिनी होते थे, हम नहीं करेंगे. ठीक है, आप ही पैनल बताओ, पैनल में से हम नॉमिनेट कर देंगे. So it is in the nature of now giving more autonomy to them through regulations. Council will constitute board of discipline, disciplinary committees. They will suggest names to us. उन्होंने कहा आप नाम बताओ, आप खुद ही बता दो कि भाई कौन बेस्ट है आपको रेगुलेट करने के लिए. Whatever name they suggest, we may agree. They are also having their own nominees in the council. उनके अपने भी nominees होंगे. ठीक है. अगला, the ICI during the course of evidence submitted the following data. ICI ने अपना डेटा दिया कि भाई देखो हमने कितने मेंबर्स को पनिश किया है. इन्होंने बताया कि डिसिप्लिनरी कमेटी में हमने 557 मेंबर्स को एक्चुअली पनिश किया है. जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है उसने 251 को किया है और टोटल 808 को. ठीक है, कुछ केसेस में पनिशमेंट वाज येट टू बी अवॉर्डेड. तो उन्होंने पूरा डिटेल दिया कि रिप्रीमेंड कितने केसेस में किया, रिमूवल ऑफ नेम 6 मंथ्स टू 1 ईयर, सारा डेटा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दिया कि देखो जी हम ये एक्शन लेते हैं. ठीक है. ऑन द कंपोजिशन ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी, द हाई लेवल कमेटी. अब ये जो हाई लेवल कमेटी बनाई थी विच वाज चेयर्ड बाय मीनाक्षी दत्ता घोष, उन्होंने क्या कहा डिसिप्लिनरी कमेटी के बारे में. इन्होंने ये कहा कि इन द कंपोजिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग बॉडीज द ओनली वे टू स्ट्रिक्टली प्रीएम्प्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट and to sustain the independence of the adjudicating bodies follow the good governance precedent set by Ministry of Corporate Affairs in 2009. वो कहता है कि भाई देखो आप एक एडजुडिकेटिव बॉडी हो, ठीक है, आपने डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, डिसिप्लिनरी केस को जज करना है, तो नेचुरली आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करोगे एंड यू विल ट्राई टू एंश्योर इंडिपेंडेंस. ठीक है. तो वाइल कॉन्स्टिट्यूटिंग द एपेलेट अथॉरिटी में यहां पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट 2 पार्ट-टाइम मेंबर्स फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स हु हैव बीन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 1 फुल टर्म एंड हु इज नॉट ए सिटिंग मेंबर ऑफ द काउंसिल. ठीक है. दिस प्रेसिडेंट ब्यूटीफुली एंड स्पेसिफिकली एड्रेसेस द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया देखो एपेलेट अथॉरिटी में इंस्टीट्यूट के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वहां पर क्या आया, उन्होंने कहा कि भाई आप 2 पार्ट-टाइम मेंबर ले लोगे. पार्ट टाइम मेंबर कहां से ले लोगे, कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट से ले लोगे. ठीक है, जो कि कम से कम एक फुल टर्म मेंबर रह चुके हो और सिटिंग मेंबर ना हो. ठीक है, मतलब एक का काम दूसरा जज कर रहा है. ठीक है. द हाई लेवल कमेटी, ये किसने कहा, ये कहा हाई लेवल कमेटी ने, व्हिच वाज हेडेड बाय मीनाक्षी दत्ता घोष. द हाई लेवल कमेटी रिकमेंड्स दैट फॉर ICI, ICSI and Institute of Cost Accountants of India, the future disciplinary committee will have 5 मेंबर्स. उन्होंने कहा 5 मेंबर की कमेटी बना दो. कंपोजिशन ऐसे रखो, क्या रखो, 2 तो गवर्नमेंट नॉमिनी रखो एज पर कम्युनिकेशन एड्रेस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टू ईच इंस्टीट्यूट. ठीक है. 2 रिप्यूटेड प्रोफेशनल्स ले लो विद नॉट लेस देन 15 इयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, जो कि काउंसिल रिकमेंड करेगी. ठीक है, अपॉइंटमेंट होगी मिनिस्ट्री से. तो दीज 2 प्रोफेशनल्स ये सिटिंग काउंसिल मेंबर नहीं होने चाहिए. ठीक है. एंड वंस अपॉइंटेड टू द डिसिप्लिनरी कमेटी shall not be eligible in seeking election to the council for a period of one term after the expiry of the term on the DC. मतलब अगर डिसिप्लिनरी कमेटी में ये आ जाते हैं तो उसके बाद कम से कम 1 टर्म तक ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवार्ड. ठीक है ना. तो उन्होंने कहा कि 2 प्रोफेशनल्स रख दो आप, 15 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस वाले हो, मिनिस्ट्री उनको अपॉइंट करे और ये सिटिंग काउंसिल मेंबर नहीं होने चाहिए. और एक बार इनका डीसी में अपॉइंटमेंट हो जाए तो फिर उसके बाद 1 टर्म ये कम से कम इलेक्शन ना लड़ेंगे. इससे क्या होगा, इंडिपेंडेंस भी होगी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी अवॉइड होगा. ठीक है. 1 मेंबर, 2 तो गवर्नमेंट नॉमिनी हो, 2 यहां से 5 मेंबर का इन्होंने कहा कमेटी बना. ठीक है. डिसिप्लिनरी कमेटी में 5 मेंबर रखो, 2 तो गवर्नमेंट नॉमिनी रख लो, 2 रिप्यूटेड प्रोफेशनल रख लो. सिटिंग काउंसिल मेंबर नहीं होने चाहिए. ठीक है. एक बार अपॉइंट हो जाए तो एक बार कम से कम 1 टर्म तक ये इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे जब इनकी टर्म एक्सपायर होगी. और 1 मेंबर होना चाहिए प्रोफेशनल विद लीगल बैकग्राउंड. ठीक है. और ये कौन रिकमेंड और अपॉइंट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो 2 सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर दे, नॉमिनेट कर दे, 2 प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाए जो 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो, और वो फिर मेंबर बनने के, डीसी का मेंबर बनने के बाद एक टर्म इलेक्शन भी ना लड़े.
ठीक है। और एक मेंबर है वो जो प्रोफेशनल हो जाए, वो क्या हो, वो ये रिकमेंड या अपॉइंटमेंट होगा भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्होंने ये जो दत्ता घोष वाली कमेटी थी, मीनाक्षी दत्ता घोष, उन्होंने ऐसा रिकमेंड किया। ठीक है। अब कमेटी ने क्या बोला? कमेटी ने बोला द टर्म्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस क्लियरली स्टेट दैट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एसोसिएटेड विद एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट रनिंग बोथ द एडमिनिस्ट्रेटिव, भाई उन्होंने कहा आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी आप दे रहे हो, आप डिसिप्लिनरी रोल भी आप ही परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसको इसका एड्रेसल जरूरी है। ठीक है। इंटेंट क्या है? इंटेंट ये है कि भाई अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी आए। ठीक है। आईसीआई ने इसको अपोज किया है। उन्होंने कहा कि भाई नॉन सीए मेंबर जो है उसको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी। ठीक है। आईफैक्ट ने क्या किया है? आईफैक्ट ने कहा कि भाई इंडिपेंडेंस होना चाहिए इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिसिप्लिनरी फंक्शंस, एंड आईसीआई सबमिटेड दैट दे आर फुली कंप्लाइड विद एसएमओ 6। तो आईसीआई further claims that disciplinary decisions have been taken unanimously। उन्होंने कहा जी जितने भी डिसीजन हमारे नॉर्मली यूनानिमसली होते हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होता। ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि भाई जहां तक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की बात है, कमेटी ने ये देखा कि भाई जो केसेस एडजज किए गए 2007 से 2021 तक, ठीक है, 7 out of 557 टोटल केसेस वर पेनलाइज्ड विद परमानेंट रिमूवल विद और विदाउट फाइन। भाई 557 केसेस में से आपने 7 केसेस में परमानेंट रिमूवल किया है। और कमेटी ने कहा कि भाई ऐसा है, जो ऑटोनॉमी है या जो इंडिपेंडेंस है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की, हम उसमें इंटरफेरेंस, अननेसेसरी इंटरफेरेंस भी नहीं चाहते। ठीक है ना। लेकिन द इंटेग्रिटी एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैनॉट बी डिमिनिश्ड इन एनी वे सिंस इट रिफ्लेक्ट्स बिजनेस स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल रोबस्टनेस फॉर द एंटायर कंट्री। उन्होंने कहा कि भाई कुछ डाइवर्जेंस है इन इंटरप्रिटेशन, ये जो इंटरप्रिटेशन है इसमें कुछ डाइवर्जेंस है कि in interpretation of the proposed amendment between the ministry and the ICI, while believing that the proposed amendments do not take away the professional autonomy of the three institutes in any significant manner, the committee are inclined to endorse the same without any modification। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम तो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन देते नहीं। ठीक है। जैसा अमेंडमेंट बिल में कहा वही हम करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द डिसिप्लिनरी बॉडीज may thus be appointed as proposed in the bill। ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूट के व्यूज सुने, एमसी का व्यू सुना, हाई लेवल कमेटी के भी रिकमेंडेशन देखी, और उन्होंने फाइनली ये कहा जो अमेंडमेंट बिल में है वैसे का वैसा ही रखो, हम कुछ इसमें चेंज नहीं चाहते। अगला पॉइंट था रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। इसके बारे में क्या कहा? विद रिगार्ड टू द रोल ऑफ प्रेसिडेंट द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस vis-a-vis the proposed amendments are as under। पहला इसमें क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सीईओ होगा। ठीक है। अब प्रपोज्ड अमेंडमेंट में ये कहा भाई सीईओ नहीं होगा, ये हेड ऑफ काउंसिल होगा। ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल प्रिजाइड एट द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड फंक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड मतलब रूल्स में आएंगे। ठीक है। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू इंश्योर दैट द डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल आर इंप्लीमेंटेड। मतलब उन्होंने कहा कि आप काउंसिल के हेड हो, आप जो है चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं हो। ठीक है। पहले वहां क्या जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन था एक्ट में क्या था, वो था कि प्रेसिडेंट शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल। इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट शैल बी द हेड ऑफ द काउंसिल। ठीक है। ये फर्क था। आप काउंसिल की मीटिंग्स प्रिजाइड करो। ठीक है। और जो भी आपके ड्यूटीज और फंक्शंस है वो रूल्स में हम बताएंगे। एंड इट शैल बी द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट टू इंश्योर दैट द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल आर, बाय काउंसिल जो भी डिसीजन लेती है उसको इंप्लीमेंट कराना किसकी ड्यूटी है? प्रेसिडेंट की। ठीक है। और ये कहते हैं अगर प्रेसिडेंट नहीं है किसी वजह से तो वाइस प्रेसिडेंट भी ले सकता है। ठीक है। और एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए काउंसिल क्या करेगी? एक सेक्रेटरी अपॉइंट करेगी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है वो कैरी आउट करेगा। अभी पहले क्या था कि वही सीईओ था जो प्रेसिडेंट था। अब इन्होंने क्या कहा कि सीईओ तो हेड ऑफ, जो प्रेसिडेंट है वो तो हेड ऑफ काउंसिल बन जाएगा, जो काउंसिल के डिसीजंस हैं उनको प्रिजाइड करे, काउंसिल की मीटिंग्स को प्रिजाइड करे, और जो काउंसिल के डिसीजंस हैं उनको इंप्लीमेंट कराए। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए एक सेक्रेटरी रखो आप, सेक्रेटरी हु विल कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका ये बन जाएगा। आगे चलते। अब इसमें आईसीआई ने क्या कहा
आईसीए ने कहा कि ये इसकी जरूरत ही नहीं है, ये अनवारंटेड है और कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, इन्होंने कहा एज प्रपोज सबसेक्शन 2C प्रोविजन इटसेल्फ सेज that it shall be the duty of the president to ensure that all decisions taken by the council are implemented. वो कहते हैं which means that this subsection can effectively be implemented only when the president is executive head of the council. तो अगर executive head होगा तभी तो implement करा पाएगा। ठीक है, तो honorable standing committee is requested to retain the already existing provision and not to make any changes, ऐसा ICI ने कहा। ठीक है, मिनिस्ट्री पर भी कमेंट मांगे गए, तो मिनिस्ट्री ने क्या कहा? मिनिस्ट्री ने कहा कि दिस अमेंडमेंट इज विद अ व्यू टू अलाइनिंग द प्रोविजंस इन दी टू अदर एक्ट्स। तो जो बाकी दोनों एक्ट्स हैं, जो आईसीडब्ल्यूए वालों का है और जो सीएस वालों का है एक्ट, उनके साथ हम अलाइन करना चाहते हैं। वहां पर क्या है? वहां प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन क्या है? हेड ऑफ काउंसिल है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ऑफ द काउंसिल। दोनों में फर्क है। उनका हम तीनों इंस्टीट्यूट्स के जो प्रोविजंस हैं उनको अलाइन करना चाहते हैं। ठीक है, it may be noted that section 12 of the cost and works accountants act and CS act were amended in 2006 and president was designated as head of council। तो उन्होंने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बजाय हमने उसको हेड ऑफ काउंसिल रखा था 2006 में। ठीक है, लेकिन इसमें सीए एक्ट में ये अमेंडमेंट नहीं हुई। तो काउंसिल जो है इट इज एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, काउंसिल का काम क्या है? And it is responsible for the functioning of the institute. As per provisions of section 15 of the Chartered Accountants Act, the institute shall function under the overall control, guidance and supervision of the council. ठीक है, और president जो है, president being head of the council is required to ensure that the decisions of the council are implemented. In other acts like Institute of Technology Act, it is provided that it should be the duty of the chairperson to ensure that the decisions of board of IIT आर इम्प्लीमेंटेड। तो उन्होंने यहाँ पर आईआईटी एक्ट का भी एक रेफरेंस दिया और उसमें ये कहा कि प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि वो हेड ऑफ काउंसिल है, वो क्या देखता है कि जो काउंसिल के डिसीजंस हैं वो इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, अब इसमें एक इंडिपेंडेंट विटनेस आए ऑन द अबव इशू, एन इंडिपेंडेंट विटनेस इन ए रिटन सबमिशन स्टेटेड एज अंडर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो चेंजेस प्रपोज्ड हैं बिल में in the roles of president and secretary, they are by far the most significant. President जो है who is currently the chief executive authority, वो बन जाएगा head of the council. secretary का कोई defined role नहीं है सी एक्ट में, अब वो chief executive officer बन जाएगा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? प्रेसिडेंट जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव हेड बन जाएगा। ठीक है, और सेक्रेटरी जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। अब इसमें क्या होगा? एक किस्म से ये ऐसा हो गया कि जैसे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के जो है उनके रोल्स का सेपरेशन हो गया। एक बन गया चेयरमैन, एक बन गया मैनेजिंग डायरेक्टर। द प्रेसिडेंट विल हैव टू एंश्योर दैट द काउंसिल डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड। अच्छा, उसके बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एविडेंस मिनिस्ट्री ने फॉलोइंग डेटा प्रेजेंट किया। मिनिस्ट्री क्या कहा? मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई आप देख लो कि डिफरेंट कंट्रीज में क्या क्या पोजीशन है, यूएसए में क्या है, यूके में क्या है। रेगुलेटर कौन होता है? यूएसए में क्या है कि पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड होता है। ठीक है, इट इज ए प्राइवेट नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन। और यूके में क्या है? वहां फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल है विच इज ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, रेगुलेटर कौन कौन होते हैं? यूएसए में कौन है, यूके में कौन है? मिनिस्ट्री ने कहा। फिर कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन में ये कि 5 बोर्ड मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग ए चेयरमैन, और सिर्फ दो ही जो है उसमें सीपीए होने चाहिए एंड विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रोफेशन। ठीक है, यूके में क्या पोजीशन है? जो चेयरमैन है या जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, as an executive director, the chair of the regulatory standards and codes committee, the chair of the conduct committee and non-executive directors, and no members of the board may be a practicing auditor or a member of the governing body of an accountancy body। तो इन्होंने दिया कि रेगुलेटर कौन है यूएसए और यूके में और उनका क्या क्या कंपोजिशन है। ये कंपैरेटिव डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दिया। ठीक है, अब कमेटी का क्या व्यू है? जो स्टैंडिंग कमेटी है, इन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू एड्रेस द फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इट हैज बीन प्रपोज्ड दैट द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट becomes that of a chairperson or head of the council and that the secretary becomes chief executive officer। ठीक है, उनका भाई हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अलग हैं, काउंसिल के फंक्शंस अलग हैं। उन्होंने कहा
कि भाई जो रोल ऑफ प्रेसिडेंट है ना, रोल ऑफ प्रेसिडेंट वो चेयरपर्सन का रोल बन जाता है या हेड ऑफ द काउंसिल, ठीक है। सेक्रेटरी जो है वो सीईओ बन जाएगा। मिनिस्टर ने कहा कि ये जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ भी हमें अलाइन करना है। और ग्लोबली जो देखा है, ग्लोबली इट कैन बी सीन दैट द रोल ऑफ द चेयरमैन और हेड हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम दैट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बस हेड अलग होता है और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अलग होती है, ठीक है। अब जो आईआईटी एक्ट है, आईआईटी एक्ट में भी ऐसा ही कुछ लिखा है कि जो चेयरपर्सन है वो क्या है, वो बोर्ड के डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये रोल आप सेपरेट कर दो और इन द बिल टू ब्रिंग आउट ग्रेटर इकोनॉमी, मतलब जो रिकमेंडेशंस थी अमेंडमेंट बिल वाली वही मान ली कि भाई आप सेक्रेटरी को अलग करो, प्रेसिडेंट को अलग करो। फिर टाइमलाइंस के ऊपर बात आई कि टाइमलाइंस फॉर कंप्लीशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, रिगार्डिंग टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिनरी कमेटी, the existing provisions vis-a-vis the proposed amendments are as under। क्या कहा इन्होंने, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में कहा कि भाई कोई टाइमलाइन नहीं है, अनंत कथा है, चलती रहती है। अब इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप जो है सेक्शन 20 proposed amendment क्या है, सेक्शन 21(3) while making investigation into a case which is found to be actionable, तो जो डायरेक्टर डिसिप्लिन है इट शैल गिव अपॉर्चुनिटी टू द मेंबर और द फर्म। अब फर्म को भी इसके केस एम्बिट में लाना चाहते हैं, पहले सिर्फ मेंबर्स के ऊपर ही डिसिप्लिनरी केस लगते थे, अब वो कहते हैं फर्म में भी लगा हुआ, ठीक है। टू सबमिट ए रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 21 डेज, उन्होंने कहा भाई 21 दिन के अंदर वो अपना रिटर्न सबमिशन दे, फर्दर एक्सटेंड कर दो 21 डेज, रीजंस बता देगा। 90 डेज में बोर्ड ऑफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी को कंक्लूड करे एंड डिसिप्लिनरी कमेटी शैल कंक्लूड इट्स इंक्वायरी विद इन 180 डेज, ठीक है, ऑफ द रिसीट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अच्छा, अब ये टाइम बाउंड मैनर जो हो गया कंप्लीशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का, आईसीआई ने इस पर क्या कहा, आईसीआई ने कहा जो टाइमलाइंस हैं, जो प्लीडिंग्स की और अंडरटेकिंग वेरियस एक्टिविटीज, इसमें प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, दे आर गिवन इन द प्रपोज्ड बिल इटसेल्फ, ठीक है। तो इट इज ए कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग that the substantive law deals with or provides for substantial and enabling provision, and the procedural part to maintain flexibility is prescribed in the delegated legislation। उन्होंने कहा भाई आप यहां पर एक एक्ट में क्यों लाना चाहते हो, ठीक है, कि भाई जो प्रोसीजरल पार्ट है उसको आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में लाओ, रूल्स में लाओ, ठीक है ना। प्रपोज्ड बिल फोकस अपॉन एम्फेसाइजिंग मोर ऑन प्रोसीजरल एस्पेक्ट, उन्होंने कहा ये जो अमेंडमेंट बिल है इसमें क्या है, तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा जोर है इसमें, whereas procedure should be defined in rules, procedure को आप rules में define करो, ठीक है। It is pertinent to mention that the board of discipline and the disciplinary committee are part-time bodies that adjudicates the disciplinary cases। तो उन्होंने कहा कि जो टाइमलाइंस आपने दी हैं ये रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। One would also agree that any judicial or quasi-judicial forum is required to adhere to the principles of natural justice। भाई दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ती है फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर, ठीक है ना। तो हम ज्यादा जल्दी के चक्कर में ऐसा भी नहीं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी ओवरलुक नहीं कर सकते, ऐसा आईसीआई ने बोला। तो देयरफॉर आईसीआई को लगा कि जो टाइमलाइन है वो रूल्स में आप प्रोवाइड करो, ठीक है। एट द मोस्ट इन दिस सेक्शन एन अपर लिमिट ऑफ टाइम फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस कैन बी प्रोवाइडेड। आप ये मत करो जी 21 दिन में ये काम करो, 21 दिन में उसको रिप्लाई करो, ये मत करो, आप मैक्सिमम में अपर लिमिट प्रोवाइड कर दो, बाकी चीजें रूल्स के थ्रू लाओ, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ने इस पर क्या कहा, मिनिस्ट्री ने ये कहा कि इट अपीयर्स दैट द इंस्टीट्यूट इज एग्रीएबल दैट टाइमलाइंस में बी प्रोवाइडेड, ठीक है, लेकिन इट डज नॉट वांट टू कमिट ऑन द पर्टिकुलर टाइमलाइंस प्रोवाइडेड इन द बिल, ठीक है। इन आईसीआई इट इज ऑब्जर्व्ड दैट लार्ज नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग फॉर मोर देन 3 इयर्स। उन्होंने कहा भाई आईसीआई में 3 साल से भी ज्यादा पेंडिंग केसेस बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोविजन है इट इज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई लेवल कमेटी, ठीक है। इन्होंने टाइमलाइन कितनी प्रेस्क्राइब की है, 365 डेज की फॉर कंप्लीशन ऑफ एंटायर प्रोसीडिंग्स एंड आल्सो नीड फॉर टाइमलाइन फॉर डिस्पोजल ऑफ डिसिप्लिनरी केसेस। तो बिल में जो है, बिल का पर्पस क्या है, बिल का पर्पस ये है कि टाइमली डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस हो जाए विद इन 180 डेज बाय डिसिप्लिनरी कमेटी एंड 90 डेज बाय बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, एंड आल्सो प्रेस्क्राइब टाइमलाइंस एट द स्टेज ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट इन द डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, ठीक है। तो in order to enable the institute to dispose the cases in a timely manner, the bill further proposes to augment the capacity of disciplinary director। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, हम ये भी तो कह रहे हैं ना डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट आप बढ़ा लो, डिसिप्लिनरी कमेटी बढ़ा लो, ठीक है ना, कम से कम 2 जॉइंट डायरेक्टर डिसिप्लिन लाओ इन एडिशन टू डायरेक्टर डिसिप्लिन
एंड वन मोर देन वन बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो हम तो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप बढ़ाओ लेकिन केसेस का इजी डिस्पोजल करो। अच्छा, पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में आईसीआई ने अपना एक रिटर्न नोट सबमिट किया। उन्होंने कहा कि 2006 से जो है हम नया प्रोसीजर ला चुके हैं, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हैं वो 1997 में लेस देन ईयर 670 थे, 1 ईयर टू 3 ईयर्स 753 थे, और मोर देन 3 ईयर्स 574 थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हमारे पास जो पड़े हैं वो 1997 है, ठीक है, जिसमें से आप देख लो कि मोर देन 3 ईयर्स वाले 574 हैं, और 1 ईयर टू 3 ईयर के 753 हैं, और लेस देन ईयर वाले 670 हैं, ठीक है। और 79 केसेस में तो ग्रांट मिला है कॉम्पिटेंट कोर्ट का, कॉम्पिटेंट कोर्ट हैज ग्रांटेड स्टे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन 2 केसेस ऑल्दो देयर इज नो स्टे ऑन द प्रोसीडिंग, फाइनल ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड ड्यू टू ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो ऑन द अबव इशू हाई लेवल कमिटी ने क्या कहा? हाई लेवल कमिटी ने कहा कि भाई केयरफुली कैलिब्रेटेड शेड्यूल दो आप ऑफ टाइम, ठीक है, सीलिंग स्टार्टिंग फ्रॉम रिसीट ऑफ कंप्लेंट सच दैट फाइनल डिस्पोजल इन सच कंप्लेंट्स डज नॉट एक्सीड 365। भाई अपने अपर लिमिट दे दी 365 डेज की, तो उसमें यहाँ पे केयरफुली कैलिब्रेटेड टाइम शेड्यूल दे दो, ठीक है, फ्रॉम द डेट द कंप्लेंट इज रिसीव्ड। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल इज टू प्रोवाइड टाइम बाउंड डिस्पोजल। तो कमेटी ने ये कहा कि भाई एक ऑब्जेक्टिव बिल का ये भी है कि वी शुड प्रोवाइड टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ केसेस, इसमें वी शुड स्पेसिफाई द टाइम लिमिट फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। तो बेस्ड ऑन द सबमिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट द मिनिस्ट्री, कमेटी ने कहा कि भाई ये रीजनेबल है और जस्टिफाइड है विद व्यू टू इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट डिस्पोजल। तो इन्होंने कहा कि भाई जो बिल में लिखा है हम वही मानते हैं। अगला, liability of firms for misconduct of partner. So regarding this timely disposal of disciplinary committee matters also, जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कोई ये टाइमलाइंस रीजनेबल है और वी एंडोर्स द टाइमलाइंस प्रपोज्ड इन द बिल। तो जो बिल में प्रपोज्ड है उन्हीं को इन्होंने एंडोर्स कर लिया, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें आता है लायबिलिटी ऑफ फर्म्स फॉर मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, कि हमें मालूम है कि पहले क्या होता था कि मेंबर्स के अगेंस्ट में ही एक्शन लिया जाता था। तो इस बिल में ये आया कि भाई मेंबर्स के अलावा आप फर्म के अगेंस्ट में भी एक्शन लो, ठीक है। तो ऑन द इश्यू ऑफ द लायबिलिटी ऑफ फर्म्स फॉर मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, फर्म्स आर नॉट कवर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग एक्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से हम चाहते हैं कि भाई फर्म भी जो है वो एक पीरियड तक के लिए कोई काम ना ले या उसको हम फाइन कर सके 25 लाख रुपए तक, ठीक है। वो कहते हैं भाई इंडिविजुअल के अगेंस्ट में आप एक्शन ले लेते हो लेकिन फर्म तो बच जाती है। तो आईसीआई ने इसमें क्या कहा? आईसीआई ने ये कहा कि भाई इन्होंने एग्जांपल दिए। एग्जांपल क्या दिए? इन्होंने कहा कि भाई आईसीआई इज आल्सो कंसर्न फॉर ए फर्म हैविंग मल्टीपल पार्टनर। भाई एक आदमी कई कई फर्मों में पार्टनर है, ठीक है ना। इन्होंने एग्जांपल दिया जैसे एक्स इज ए पार्टनर साइमल्टेनियसली इन मोर देन वन फर्म, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है। भाई जब फर्म ने मिसकंडक्ट किया तो एक जो है एक एक्स ए जो है वो पार्टनर था एक से ज्यादा फर्मों में, और फर्म को आपने गिल्टी दे दिया। तो क्या हम सारी फर्मों पे पेनल्टी लगाएं या एक फर्म पे पेनल्टी लगाएं? हमारा ये क्वेश्चन। दूसरा कि भाई जब मिसकंडक्ट हुआ तो वो एक फर्म में पार्टनर था, बाद में वो दूसरी फर्म में पार्टनर बन गया, तो क्या हम दोनों पे लगाएं, किस पे लगाएं, ये भी क्लियर नहीं है। तीसरा ये कि आफ्टर कमिटिंग रिपीटेड मिसकंडक्ट्स एंड फाउंड गिल्टी इफ ए डिसॉल्व्स द सेड फर्म, ठीक है। भाई बहुत सारे मिसकंडक्ट हो गए, उसने क्या किया? फर्म में डिसॉल्व कर दी। अगर फर्म डिसॉल्व कर दी और नई फर्म आ गई तो क्या नए फर्म पे भी पेनल्टी लगेगी? ठीक है, ये सब एप्रीहेंशंस आईसीआई ने एक्सप्रेस की। उसके बाद में भाई फर्स्ट टाइम में ए इज फाउंड टू बी गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट एज डिफाइंड। पहली बार वो फर्स्ट शेड्यूल में है, दूसरी बार वो सेकंड शेड्यूल में है, या दोनों शेड्यूल में है, तो रिवर्स सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये जो प्रोविजंस जितने भी आपने बनाए हैं ये ज्यादा क्लैरिफिकेटरी होने चाहिए, ठीक है। एंड देयर मे बी सिचुएशन वेयर 4 पार्टनर्स ऑफ अ सिंगल फर्म आर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट,
ठीक है, but none of them have been found repeated guilty. Now it is not clear whether any action can be contemplated on the said firm in this case. ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई फर्म के अगेंस्ट में आप एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है. ठीक है, further to above, ICAI is also concerned for a firm having multiple partners, paid assistants, employees and articled assistants. अब वो कहते हैं कि एक पार्टनर अगर रिपीटेड गिल्टी है तो एक्शन वुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एंटायर फर्म इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ इट्स नेम फ्रॉम द रजिस्टर. However, it is felt that this will lead to unnecessary hardship to all other partners, paid assistants, employees, etc., who are dependent for their livelihood on the firm without any fault of them. उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि अगर हम फर्म का नाम ही रजिस्टर से हटा देंगे तो जो उसके पार्टनर हैं, जो दूसरे एम्प्लॉइज हैं, आर्टिकल असिस्टेंट्स हैं, उनका क्या होगा. मिनिस्ट्री ने क्या कहा इस बात पर. मिनिस्ट्री ने ये कहा कि the proposal for fixing liability of the firm has been introduced in all the three acts through the present amendment bill. ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन के लिए भी डिफरेंट प्रोविजन बनाए हैं कि रजिस्ट्रेशन भी करवाओ आप फर्म्स का. It is also relevant that the institute has raised no objection as regard its introduction of separate chapter on registration of firms. उन्होंने कहा कि भाई रादर एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स पे आप सेपरेट चैप्टर लाओ एंड आल्सो द पावर ऑफ द काउंसिल टू पेनलाइज देम. ठीक है, the action against member who is a partner or owner of a firm has been provided in the bill for misconduct under the first schedule to be inquired by the board of discipline and for misconduct under the second schedule. जो second schedule के offenses हैं वो disciplinary committee देखती है, जो first schedule के offenses है वो board of discipline देखता है. ठीक है, और जो repeated misconduct है on part of partner of a firm in the last 5 years rather than the same or identical offense would be considered for taking action अगेंस्ट द फर्म ऑल्सो. उन्होंने कहा कि भाई अगर रिपीटेड मिसकंडक्ट है, ठीक है, ऑन पार्ट ऑफ ए पार्टनर ऑफ ए फर्म इन द लास्ट 5 years, ठीक है, तो हियर रिपीटेड मिसकंडक्ट रेफर्स टू मिसकंडक्ट ऑफ पार्ट ऑफ ए पार्टनर और ओनर ऑफ ए फर्म on more than one occasion. Therefore, different formulation based on types of repeated offenses is not required. ठीक है, a professional charged with misconduct and found guilty may be partner in more than one firm. However, for the purpose of this clause, partners of the firm on behalf of which he has carried out the audit certification and is found to be involved is misconduct would only be covered. तो इन्होंने MCA ने इस बात पर ये clarification दिया. तो the proposed formulation in the bill has been vetted by the legislative department. तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी हमने legal vetting भी कराई है, तो legally it's okay. ठीक है. अब जो हाई लेवल कमेटी थी दत्ता घोष वाली, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी. उन्होंने कहा जो disciplinary mechanism है in all the three professional institutes, it extends only up to its individual manner और फर्म के ऊपर कोई liability नहीं आती. ठीक है ना. तो सत्यम केस अगर हम देखें तो हाई पावर्ड कमेटी अपॉइंटेड विद द इंस्टीट्यूट हैड प्रपोज्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उन्होंने क्या कहा था कि भाई आप ऐसा करो कि हम फर्म के अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकें. ठीक है, इंक्लूडिंग imposition of ban where the partners and the members of an audit team are found to be guilty. With reference to the disciplinary process, this high level committee recommends that it is logical and also high time that the firm must also be held culpable. ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई फर्म को भी लायबल बनाना चाहिए. ठीक है, और कंप्लेनेंट जो है इट मस्ट फर्निश द नेम ऑफ द फर्म और पार्टनरशिप. ठीक है, सिमिलरली इन द फाइनल ऑर्डर the name of the firm must be stated upfront in terms of specific penalties imposed as relevant. And finally, in order to bring the firms of members also under the umbrella of disciplinary mechanism, the high level committee recommends that the proposal of ICAI contained in letter dated itna should now be considered as soon as feasible. If accepted, this would require amendments in the act and rules. तो उन्होंने कहा कि फर्म को भी लायबल आपको. तो हाई लेवल कमेटी ने क्या कहा कि भाई एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द फर्म्स आल्सो. अब स्टैंडिंग कमेटी का क्या फाइनल रहा. स्टैंडिंग कमेटी का ये रहा कि भाई ये फर्म्स को भी लाना अंडर द परव्यू ऑफ डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल. ठीक है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं. ठीक है, जिसमें क्या है कि शेल कंपनीज आई आफ्टर डिमोनेटाइजेशन और ये है कि एक्शन आपने फर्म के केस में ले नहीं पाए. उन्होंने कहा कि भाई हमें तो बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि भाई मिनिस्ट्री हैज टेकन एन अनड्यूली लॉन्ग टाइम इन टेकिंग एन एक्शन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द हाई लेवल कमेटी. जो 2017 में हाई लेवल कमेटी बनी थी उसकी रिकमेंडेशंस पर एक्शन लेने में मिनिस्ट्री को इतना टाइम लग गया. हमें हाई कमेटी को तो सरप्राइज हो रहा है.
ठीक है। अब वही कहते हैं कि जो आईसीआई अगर अपोज कर रही है टू पेनलाइज फर्म्स फॉर द रिपीटेड मिसकंडक्ट ऑफ इट्स पार्टनर्स इज अनफाउंडेड, ठीक है, क्योंकि फर्म्स का क्या है, फर्म्स दे हैव ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद देयर पार्टनर्स एंड आर इक्वली रिस्पांसिबल फॉर देयर डीड्स, ठीक है। फर्दर इट मे बी नोटेड दैट द बिल डज नॉट इंटेंड टू एनालाइज फर्म्स फॉर ए सिंगल मिसकंडक्ट। वो कहते हैं सिंगल पे तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो रिपीटेड मिसकंडक्ट पे बात कर रहे हैं। भाई 5 साल में बार बार मिसकंडक्ट कर रहा है, तभी हम कहते हैं कि उस फर्म के अगेंस्ट में एक्शन लो। तो कमेटी कहती है कि भाई ये जो है ये कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं है एंड दे वुड रादर गो ए लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल स्कैम्स इन द फ्यूचर। अच्छा, इंक्रीजिंग कंपटीशन के बारे में भी कुछ डिस्कशन हुआ इसमें। इसमें क्या कहा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एविडेंस द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स स्टेटेड एज अंडर in the US for taking license you have to go to state board of accountancy, ठीक है। for public listed companies there is public company accounting oversight board, ठीक है। इन्होंने यूएस वगैरह का सिस्टम स्टडी किया and it has to be independent from the profession. The American Institute of Certified Public Accountants is a voluntary organization but they cannot give license to practice. In fact they are conducting seminars. Maybe they are also assessing syllabus through which the CPAs should appear in the exam. Even exam is conducted by National Association of State Boards of Accountancy and State Boards of Accountancy. उन्होंने कहा यूएस में 56 बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं अकाउंटेंसी के। कैलिफोर्निया में देयर आर 15 मेंबर्स, 7 प्रोफेशनल हैं और 8 जो है दूसरे मेंबर हैं जो अदर देन प्रोफेशनल्स हैं। एल्बामा में इट इज 1 lay member and 6 professionals, but all are appointed by the government. They are not getting appointed by the council, ठीक है। तो देयर वुड बी स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडीज बट दे आर नॉट रेगुलेटिंग देमसेल्व्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आईसीआई लाइसेंस दे रही है, आईसीआई एग्जाम कंडक्ट कर रही है, दैट इज व्हाई वी हैव सेड इट इज स्टैट्यूटरी मोनोपोली। उन्होंने कहा इसीलिए हमने इसको स्टैट्यूटरी मोनोपोली कहा। इट इज डूइंग एवरीथिंग, एग्जाम भी आप ही ले रहे हो, लाइसेंस भी आप ही दे रहे हो, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म भी आप ही एनफोर्स कर रहे हो। It is doing everything unlike USA where awarding of license is with the government. उन्होंने कहा कि वहां पर क्या है, लाइसेंस कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस इज विद द गवर्नमेंट। इट इज कंप्लीटली रेगुलेटेड knowing the sensitivity and importance of the profession. Who will be appointing the members of the board of accountancy? They are appointed by the governor, senator or speaker. The AICPA is only becoming an organization where if you want to get benefit out of something and you become a member, that is a major difference. To practice in USA, you need not become a member of AICPA. I may not be obliged to take the membership of AICPA to practice. I can take a license from the government and practice. ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है आईसीआई से, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। Without obtaining CP, you cannot practice. That means it is completely controlled by one institute. There is no competition also to develop the profession, unlike in other countries where there are multiple bodies competing with each other and developing the profession. Ministry ने क्या कहा? Ministry also provided the following information regarding qualification and licensing in various countries. अब उन्होंने कहा कि जो एग्जामिनेशन है सीपीए का, इट इज कंडक्टेड बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो एआईसीपीए, ए वॉलंटरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीपीएस एट नेशनल लेवल, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेट बोर्ड्स ऑफ अकाउंटेंसी, गेट्स द स्कोर्स फ्रॉम एआईसीपीए एंड ट्रांसमिट टू स्टेट बोर्ड्स ऑफ अकाउंटेंसी। लाइसेंस टू प्रैक्टिस ये कौन देता है, जो स्टेट बोर्ड्स ऑफ अकाउंटेंसी है, not by AICPA or state societies, and CPAs need not be members of AICPA. फिर उन्होंने यूके, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी कहा, ठीक है, कि एक्टिविटीज कंबाइंड है बट परफॉर्म थ्रू मल्टीपल बॉडीज। ठीक है, कनाडा में क्या है, एक्टिविटीज कंबाइंड है बट परफॉर्म थ्रू मल्टीपल स्टैट्यूटरी प्रोविंशियल बॉडीज, जहां पर क्या एक ही है। ऑन द अबव इशू इंडिपेंडेंट विटनेस, एक इंडिपेंडेंट विटनेस से भी क्या सजेशन दिया, उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट जो आ रहा है व्हाट्सएप फैक्ट्री में, वो इस पर ही है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये किसने दिया सजेशन, एक इंडिपेंडेंट विटनेस ने। क्या कहा, दिस प्रपोजल इज फॉर एस्टेब्लिशिंग ए स्ट्रिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग दैट विल रेज द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एजुकेशन एंड ऑफर कंपटीशन टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हियर इज एन आउटलाइन ऑफ व्हाट द आईआईएएस वुड बी लाइक। उन्होंने कहा जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग है, दे विल बी स्टैट्यूटरी बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल लॉ सिमिलर टू आईआईटीज एंड आईआईएम।
उन्होंने कहा जैसे IIT और IIM होते हैं इसी तरह से आप यहाँ स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाओ, और उससे क्या होगा कि कंपटीशन होगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को, ठीक है। दे विल बी सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हर एक जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग है, इट विल हैव ए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। वहां पर क्या होगा, एक्सपर्ट्स होंगे, ले पर्सन होंगे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। बोर्ड का साइज आप 10 रख लो, ठीक है। बोर्ड जो है इट विल हैव फुल फंक्शनल फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स हैं दे विल बी एमिनेंट पर्संस, एंड बोर्ड विल अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर्स एंड दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये पूरा इन्होंने डिटेल दिया है इसका। बोर्ड जो है एक डायरेक्टर CEO अपॉइंट करे 5 साल के लिए, एंड डायरेक्टर shall not be eligible for reappointment, and each is Indian Institute of Accounting will have an academic council। तो उन्होंने कहा ये एक एकेडमिक काउंसिल होगी जो ये सब चीजें गवर्न करे, ठीक है। 5 साल का इनका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा इन अकाउंटिंग। एडमिशन जो है उसके लिए नेशनल एंट्रेंस टेस्ट ले लो आप, रिसर्च ड्रिवन होगा, ठीक है। और जो नेशनल और जो रीजनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, इनके साथ क्लोजली काम करें, ठीक है। इसकी एक इंटरनेशनल आउटलुक हो उसमें। दे शुड हैव स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग भी रीजनेबल होनी चाहिए, और लिबरल फाइनेंशियल एड भी इनको मिलनी चाहिए, ठीक है। Those who qualify, they will be given 2 degrees, एक बैचलर ऑफ अकाउंटिंग और बैचलर ऑफ बिजनेस, ठीक है। दिस विल गिव देम ए चॉइस ऑफ द स्ट्रीम। भाई वो अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं या बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो एक तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दे दो, ठीक है। एंड दे विल बी गिवन लाइसेंस टू प्रैक्टिस सिमिलर टू CS। जैसे CS प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ये लोग प्रैक्टिस करें। द लाइसेंस होल्डर्स, इनको हम कहेंगे सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, CPAs, and they will be required to register themselves with a central licensing authority such as NAFRA, which will handle their disciplinary matters, ठीक है। तो the proposal visualizes the Indian Institute of Accounting as academic institute। वो कहते हैं कि एक academic institution बनाओ। अभी तो जैसे हमारा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने कहा एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट बनाओ that educate licensed professionals similar to AIMS, PGI, JIP, MER, National Law Schools and so on, है ना। ये जो है ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एजेंसी बन जाएगा, मत द सेम वे इट इज नाउ, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी रहेगा, तो इट विल बी ए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एजेंसी, ठीक है। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द बिल एंड स्क्रूटनाइजिंग ग्लोबल प्रैक्टिसेस विद रिगार्ड टू प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। वहां पर इन्होंने कहा कि भाई जब हमने बिल को एग्जामिन किया और जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उसको स्क्रूटनाइज किया, तो उसमें क्या देखा हमने, जो क्वालिफिकेशन है और जो लाइसेंसिंग है अकाउंटेंट्स इन एडवांस कंट्रीज लाइक US, UK एंड कनाडा, इट इज डन बाय मल्टीपल बॉडीज लाइक इन इंडिया। वहां पर क्या होता है, बहुत सारी बॉडीज है। यहाँ पर क्या है, एक ही बॉडी है, उसी की स्टैट्यूटरी मोनोपोली है, तो देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो कमिटी ने देखा कि वो जो मल्टीपल बॉडीज है, ये इट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन, रेज द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एंड इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो कमिटी ने कहा कि गवर्नमेंट शुड कंसिडर सेटिंग अप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग अकिन टू IITs। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये सजेशन दे रहे हैं कि भाई आप जो है ये ऐसे इंस्टीट्यूट बनाओ। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा यहाँ पर कहना कि ये जो अमेंडमेंट है ये ओरिजिनल बिल में प्रपोज नहीं थी, अमेंडमेंट बिल में, ठीक है। ये कहां से आई है, ये आई है एक इंडिपेंडेंट विटनेस से, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट विटनेस ने कहा कि भाई इस तरह से आप ये बनाओ। किसने कहा, एन इंडिपेंडेंट विटनेस सबमिटेड द फॉलोइंग सजेशंस। आगे देखते हैं। तो इन्होंने भी कहा, कमेटी ने भी कहा कि भाई ठीक है, इससे कंपटीशन इंक्रीज होगा, ठीक है ना, इनकी ऑटोनॉमी खत्म होगी और क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ ऑडिटिंग भी इंप्रूव होगा। तो गवर्नमेंट को ये कंसीडर करना चाहिए। कमेटी डिजायर, इन लिखा कमेटी डिजायर दैट द गवर्नमेंट शुड कंसीडर सेटिंग अप ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगला सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 22 प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। ये प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट के ऊपर क्या पॉइंट है, इसमें ये कहा कि क्लॉज 26 ऑफ द बिल स्टेट्स दैट कि for section 22 of the principal act the following section shall be substituted, namely for the purposes of this act the expression professional or other misconduct shall be deemed to include any act or omission on the part of any member of the institute either in his individual capacity or as partner or owner of a firm as mentioned in any of the schedules
but nothing in this section shall be constituted to limit or abridge in any way the powers conferred or duty cast upon the director discipline to inquire into the conduct of such member or firm under any other circumstances. अब इसमें क्या, इसमें ये कहा कि जो प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट है, कई बार क्या होता है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपने नहीं किया, कोई दूसरा मिसकंडक्ट कर दिया, तो उसमें क्या इंक्लूड होगा, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड एनी एक्ट और ओमिशन on the part of any member of the institute either in his individual capacity या partner या owner of a firm. ठीक है, as mentioned in any of the schedules, but nothing in this section shall be construed to limit or abridge in any way the power conferred or duty cast upon the director discipline to inquire into conduct of such member under any other circumstances. तो उन्होंने कहा कि ये अदर मिसकंडक्ट के ऊपर है कि अदर मिसकंडक्ट अगर इंडिविजुअल का है या फर्म का है तो उसमें जो डायरेक्टर डिसिप्लिन की पावर है वो भी आप उसको लिमिट नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी आप ही कैन इंक्वायर इनटू द कंडक्ट ऑफ सच मेंबर और फर्म अंडर एनी अदर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है भाई, उसने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं किया, कोई दूसरा मिसकंडक्ट कर दिया या ओमिशन कर दिया या एक्ट कर दिया। ठीक, द कमिटी रिकमेंड्स एडिशन ऑफ द वर्ड कमीशन इन क्लॉज 26। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि आप यहाँ पर कमीशन वर्ड और कमीशन या ओमिशन, वहां पर क्या लिखा था एनी एक्ट और ओमिशन, तो इन्होंने कहा एनी एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन ऐड कर दो। ठीक है, तो कमेटी के रिकमेंडेशंस थी, कमेटी ने कहा कि भाई आप ये वर्ड और फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन प्रोफेशनल और मिसकंडक्ट अदर मिसकंडक्ट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कमीशन या ओमिशन आप दे दो ऑन द पार्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट आइदर इंडिविजुअल कैपेसिटी या पार्टनर। ठीक है, और डायरेक्टर डिसिप्लिन की पावर जो है इससे किसी भी तरह से कम नहीं होगी। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की जहां तक बात है तो उन्होंने कहा कि भाई जो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स है उसके बजाय कॉस्ट अकाउंटेंट्स दे दो। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ने क्या कहा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ने कहा कि भाई इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द एग्जिस्टिंग वर्ड्स कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स विद द वर्ड अकाउंटेंट्स दीस शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद द वर्ड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो उन्होंने कहा कि भाई हम हमारा इसके कॉस्ट अकाउंटेंट्स के बजाय आप इसका वर्ड पहले वर्ड था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स। बिल ने क्या कहा, बिल ने कहा जी कॉस्ट अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब आईसीडब्ल्यूए इंस्टीट्यूट ने क्या सजेशन दिया, इन्होंने कहा कि भाई आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स कर दो इसको। ठीक है, इन लाइन विद द क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स जैसे एसीएमए या एफसीएमए, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इट विल बी इन लाइन विद द चेंजिंग रोल ऑफ प्रोफेशनल्स नोन अर्लियर एज कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई दूसरे भी इंस्टीट्यूट जो हैं वहां पर भी जैसे चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, तो यहाँ पर भी आप नाम जो है ना सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बजाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर दो। ठीक है, क्या भाई इंडिया में जो है कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, ठीक है ना, तो जो डोमेन है कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज मैच्योर्ड और अब ये कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। तो इसमें कमेटी ने क्या कहा, कमेटी ने कहा कि भाई इन्होंने कहा कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स कर दो। ठीक है, इन ट्रेंड विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। तो कमेटी ने कहा कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है इट मे कंसिडर सुटेबल चेंजेस टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ द इंस्टीट्यूट एज पर इंटरनेशनल प्रैक्टिस। तो इन्होंने ये कहा कि भाई एमसीए इस पॉइंट को और देख ले कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है उसके हिसाब से उस चीज को कंसिडर कर ले। तो ये हमारी थी रिपोर्ट पूरी। तो अब देखिए कि मेन रिपोर्ट हमने पढ़ ली है और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये फिर 7th कमेटी इसमें आया, इसमें ये कहा ये मेंबर्स थे और ये कुछ विटनेसेस थे इसमें। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स के भी थे और कंपनी सेक्रेटरीज के भी थे। तो अब अल्टीमेटली इन्होंने जो है वो प्रेजेंट कर दी रिपोर्ट।
तो कमेटी ने जो ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है इसको अडॉप्ट कर लिया और चेयरपर्सन को कहा कि टू फाइनलाइज एंड प्रेजेंट द रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये थी हमारा इसमें पूरा डिस्कशन जो हमारा हुआ इसमें। तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो। This video, the purpose of preparing this video is to spread awareness about the standing committee report. बहुत बार क्या होता है कि WhatsApp फैक्ट्री चलती रहती है, उसमें ये हो गया वो हो गया, but as a professional we must study the reports and whatever is in public domain हमें उसको study करना चाहिए. We should apply our mind और उस पर अगर हमें कोई suggestions हैं या जो भी improvements हैं वो suggest करनी चाहिए. This was the basic purpose and this video has been prepared for educational purposes only. Thank you very much.